ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਮ ਮਹਾਜਨ। ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ, ਯਾਤਰੀ ਤੰਗ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੇन्नई ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ EMPLOYEES ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਪੈਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਲਾੜਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉसी हिसाब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬੈਲੈਂਸ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ। ਇसी ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨਗੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਮੈਨਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अमित जी बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। थैंक यू वेरी मच शिवम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ਜੀ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 6000 ਤੋਂ 7000, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 60000 ਤੋਂ 70000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਣੇ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ है मैनन साहब? ओके सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पायलट्स हैं उनका जो काम है वो बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं सेंसिटिव तरीके का काम है। तो उसके लिए एक नॉट मतलब केवल डीजीसीए ने ही नहीं बट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कुछ निकाला हुआ है कि भाई हर पायलट को एक मैंडेटरी रेस्ट पीरियड कुछ मिलना चाहिए और कितना उसका यूटिलाइजेशन कर सकती है एयरलाइन कि मतलब एक बारी में ही मतलब मान लो 12 लैंडिंग करा दी, 20 लैंडिंग करा दी, ऐसे नहीं होता। और हमारे लिए हम सब के लिए एज पैसेंजर्स भी अच्छा है क्योंकि हमारा पायलट फ्रेश हो, रेस्टेड हो, वो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो सेफ्टी उससे जनरेट होती है। तो इसको बोलते हैं सब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, FDTL अगर हम शॉर्ट में बोलते हैं FDTL। तो ये बेसिकली जो पायलट को फटीग होता है या जो वो थकता है अपनी फ्लाइंग से, वो ना थके और हमेशा हर फ्लाइट के लिए आपको एक फ्रेश सा मतलब सजग पायलट मिले, वो इसकी वो है। तो उन्होंने जनवरी 2024 मतलब इनिशियल जनवरी से लेकर मार्च के बीच में DGCA ने एक नया FDTL निकाला जिसमें कुछ बहुत ही अहम मतलब जो चेंजेस थे वो मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। हालांकि जो रेगुलेशन है वो तो बहुत लंबा है। उसमें मेन जो चीज़ थी वो था नाइट ऑपरेशंस की। उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी कि रात के 12 बजे से 5 बजे की जगह अब वो रात के 12 बजे से 6 बजे होगा। यानी कि जितनी भी लैंडिंग 5 से 6 के बीच में होंगी अब वो भी नाइट के घेरे में आ गई, पहली बात। दूसरा उन्होंने बोला कि जो पायलट्स पहले नाइट में 6 लैंडिंग कर सकते थे अब वो केवल 2 लैंडिंग कर पाएंगे। ये भी एक बहुत मेजर पॉइंट था। और जो तीसरा पॉइंट जिससे थोड़ा सा प्रॉब्लम सबको आई है वो ये था कि इनको बोला जा रहा था कि एक हफ्ते में कंटिन्यूअस रेस्ट 36 घंटे होता था पहले, वो अब इसको 48 कर दिया जाए कंटिन्यूअस रेस्ट, यानी कि 2 दिन आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर सकते पायलट को। अब आप एक बहुत सिंपल एग्जांपल देखिए, एक फ्लाइट लेके एक कैप्टन कहीं से कहीं जा रहा है और वो अगली फ्लाइट के लिए वेट कर रहा है, लेकिन हो क्या गया, वहाँ पे वेदर खराब है, मान ली वो 1 घंटा उसको वहाँ वेट करना पड़ गया। अब वो ड्यूटी पीरियड में तो काउंट हो रहा है, अब उसका सडनली मान लीजिए उसका टाइम खत्म हो गया, अब वो ड्यूटी कर ही नहीं सकता एज पर दिस रूल। अब फिर एयरलाइन को दूसरा पायलट बुलाना पड़े, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
और जब डीजीसीए ने, लेकिन एक अच्छी बात थी कि जब डीजीसीए ने 2024 में ये चीज़ निकाली थी तो उन्होंने एयरलाइंस को टाइम दिया, बोला कि आप अपना मतलब, क्योंकि इसका बेसिक एक बहुत सिंपल ये निकलता है कि भाई आपको और ज़्यादा पायलट्स हायर करने पड़ेंगे, जी। अपने रोस्टर पे ज़्यादा पायलट्स रखने पड़ेंगे। तो हुआ ये कि मुझे लगता है कि वैसे तो हमारे लिए मतलब इंडिगो सबसे अहम एयरलाइन है अगर देखा जाए इंडिया में, जी जी और इतने सारे जगहों को कनेक्ट कर रही है जहां हमने कभी सोचा नहीं था कि फ्लाइट भी जाएगी। बिल्कुल। और इसका ये पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा नाइट फ्लाइट्स भी इंडिगो के पास ही हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नाइट फ्लाइट्स की वजह से हो रही है। तो शायद ये जो इन्होंने अपना स्टेटमेंट निकाला है इंडिगो का, वो मैंने पूरा पढ़ा था उनका प्रेस स्टेटमेंट, कि उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि जब ये 1 नवंबर से लागू होगा ये फाइनली ये कानून, तो उसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ जाएगी पायलट्स की कि वो मतलब ये फ्लाइट्स नहीं ले पाएंगे, और इसलिए उनकी बुकिंग्स वगैरह हो गई थी, ये हो गया। तो एनीवे दे हैव अपोलोजाइज्ड, इट इज़ फाइन। आई मीन डीजीसीए ने भी थोड़ा सा उनको 2 महीने के लिए, और मतलब फरवरी तक के लिए रिप्रीव दिया है कि ये सब वो ठीक कर लेंगे। मेन चीज़ मैं यही मतलब मानूंगा कि डीजीसीए का जो एम था, मेन मुद्दा था, वो ये था कि पैसेंजर सेफ्टी को बढ़ाया जाए। एंड आई एम श्योर कोई भी एयरलाइन ऐसी नहीं है जो पैसेंजर सेफ्टी को मतलब दांव पे लगा सकती है अपने कमर्शियल्स के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आप देखिए, मतलब ये बहुत सिंपल बात है कहना कि नहीं नहीं इनको तो पैसे चाहिए इसलिए इस लोग ऐसा कर रहे हैं, बट मुश्किल है ऐसा होना, क्योंकि आप ये मान के चलिए एक इंसिडेंट, छोटा सा भी इंसिडेंट अगर हाईलाइट हो जाता है तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। मतलब अहमदाबाद का क्रैश अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब सा क्रैश था, लेकिन एयर इंडिया की जो इमेज है उसके ऊपर कितना डेंट पड़ा। तो कोई नहीं चाहता कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो। मे बी उन्होंने ऑपरेशनल थोड़ा सा गलत आंका है अपने फ्लाइट्स को, एंड आई होप कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए जिससे कि पैसेंजर्स को प्रॉब्लम ना हो। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋٹے ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੇਠਾਂ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ, ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਤੇ चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, तलखी नजर आ रही है आपस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੜਦੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ये देखा था मैंने, वीडियो देखा था। ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी, मैं यही करूँगा पैसेंजर्स को कि जितना ज़्यादा वो अपनी इंफॉर्मेशन जो चेक करके जाने, मतलब एयरपोर्ट पे जाने के पहले इंफॉर्मेशन चेक कर लें, वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि इंडिगो का मैंने जब देखा है, जब भी, क्योंकि मैंने भी बहुत फ्लाइट्स ली हैं इंडिगो की, उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उसमें बताते हैं। इस पूरे प्रकरण में अगर मैं बोलूँगा, अगर कोई गलती मेन हुई है इंडिगो से, वो शायद मोस्ट पब्लिक कम्युनिकेशन की हुई है। क्योंकि हो सकता है कि इतने ज़्यादा कैंसिलेशन हो गए कि इनका सिस्टम जो ऑटोमेटिक मैसेजेस भेजता है वो भी मतलब भेज नहीं पा रहा है, या लोगों ने चेक नहीं किए। क्योंकि देखो, 100-200 लोग अगर पहुँच जाएँ किसी जगह पे तो समझ में आता है, पर अगर जब आपकी एक दिन में ही मतलब ऑलमोस्ट 1000 फ्लाइट्स अगर आपकी कैंसिल हो रही हैं, अगर हम 180 या 200 लोग भी लगा के चलें एक फ्लाइट में, तो कितना बड़ा नंबर है। और वो बड़ा नंबर पूरा एयरपोर्ट पे पहुंचेगा। ग्राउंड क्रू कितने होते हैं हम लोग देखते तो हैं। वैसे ही इंडिगो की एक फिलॉसफी रही है कि लीन, यानी कि सबसे कम लोगों को उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है। नंबर अगर देखा जाए, एयर इंडिया के 7-8 लोग खड़े हुए मिलेंगे आपको, इंडिगो के 4-5 ही मिलेंगे, तो ये नॉर्मल है। अब उन बेचारों के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो फ्लाइट्स का डिसीजन होता है वो ऑपरेशंस लेता है, ठीक है। टिकटिंग जो होती है वो कमर्शियल्स करती हैं, पायलट्स की जो हायरिंग है वो HR करते हैं। तो अलग अलग इतने बड़े महकमे में, मतलब इतना बड़ा इंडिगो बन गया है कि उसके महकमे इतने अलग अलग हैं कि बेचारे जो ग्राउंड क्रू वहाँ पे खड़े हैं वो तो शायद अपने आप मदद ही करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास खुद ही ना इन्फॉर्मेशन है,
ना उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है। इसलिए उनको तंग करना, उनसे चिल्लाना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास ना सीट है। अगर फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है तो वो बेचारे फ्लाइट तो कहीं से लेके जादू से कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि उनके साथ मिसबिहेव करके कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, हम क्लेम्स डाल सकते हैं इंडिगो में। डीजीसीए का एक पोर्टल है, एयर सेवा पोर्टल। एयर सेवा पोर्टल के ऊपर डाल सकते हैं हम ये क्लेम्स कि भाई हमें कंपनसेशन दो। अभी तक जितनी बात हुई है, डीजीसीए ने कोई कंपनसेशन की बात नहीं करी है, केवल रिफंड की बात करी है, फुल रिफंड हो। आप और मैं जब भी टिकट बुक करते हैं, ठीक है। तो अगर बाई चांस कैंसिल करते हैं तो एयरलाइन कुछ ना कुछ 3, 4, 5 हज़ार रुपये काटती है। ठीक है। इन दिस केस आई थिंक अगर एयरलाइन के ऊपर पेनल्टी डालनी है तो दे कैन गिव रिफंड अलॉन्ग विद सम कंपनसेशन, दैट वुड बी बेटर थिंग। बट अपना गुस्सा इनके ऊपर निकालना कोई फायदा नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਸਟਮਰ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ जी, ਹੋਰ और ਕਰਾਂਗੇ, ऑपरेशनल ਤੁਸੀਂ स्टाफ ने ਜ਼ਿਕਰ कभी सामने नहीं आना। ਜੀ 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 जी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ हम्म। ਜੀ। ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਕ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਪਾਇਲਟ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ जी ਦੀ जी। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਯਕਦਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ। नहीं देखिए, अब मतलब गलती कहाँ पर है, ये तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने बोला है कि हम एक इंक्वायरी बिठा रहे हैं इंडिगो के अगेंस्ट, और वो जी। पूरा पता चलेगा कि किसने कहाँ गलती करी। बट मेरे हिसाब से समय था। डीजीसीए ने पिछले साल ये रूल्स निकाले थे और उनका इम्प्लीमेंटेशन होना था मतलब 1.5 साल बाद, यानी 1 जुलाई 2025 को फेज़ 1 में और 1 नवंबर 2025 को फेज़ 2 में। इसका मतलब ये तो मान सकते हैं कि एयरलाइंस के पास टाइम था, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि डीजीसीए ने इक्वल टाइम दिया सबको। अब आकाशा की दिन में मान लीजिए 200, 250, 300 फ्लाइट चलती हैं, जी ठीक है। एयर इंडिया की करीब मान लीजिए 1000, 1100, 1200 फ्लाइट चलती है दिन में। जी। इंडिगो की वहीं पे 2300, 2400, 2500 फ्लाइट चलती है दिन में। ठीक है ठीक है। तो जो स्केल है इंडिगो को करेक्शन के लिए, वो वैसे ही उनको मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम शायद चाहिए था। ठीक है। और जो शायद वो समझ नहीं पाए इस चीज को सही टाइम में, और एंटिसिपेट नहीं कर पाए इस प्रॉब्लम को ठीक से, तो यहाँ कहीं पे गलती हुई है। बट अदरवाइज डीजीसी की तरफ से मुझे लगता है कि टाइम तो ठीक ठाक था, बट हाँ, सबको इक्वल टाइम देना भी शायद हो सकता है गलत रहा हो, क्योंकि एक पायलट की ट्रेनिंग, शिवम मैं आपको बता दूं, मिनिमम अगर शुरुआत से लिया जाए तो करीब करीब 1.5 से 2 साल लगते हैं। और अगर जॉब से ली जाए, जब वो जॉब से उसको रिक्रूट करते हैं, तब भी उसको कम से कम आप मान लीजिए 1 साल तो लगता ही लगता है फुल्ली ऑपरेशनल होने में। ठीक है, यानी एक लंबा प्रोसैस जिक्र जिवें नंबर्स का किया कि जिवें एयर इंडिया को फ्लाइट्स घट है उन्होंने एक टर्नओवर पीरियड जिहड़ा सीगा उहदे विच उन्होंने जिहड़ी डिमांड है फुलफिल कर दी। पर जेकर आपां इंडिगो की गल करिए, जिसनों कि आपां देख लिया कि रह के रौला पै रहा, वही तस्वीर असीं दिखा रहे हैं। इंडिगो के जिहड़े काउंटर्स बने हुए उत्थे ही ज़्यादा हुड़दंग मचता नज़र आ रहा। उन्होंने टाइम पीरियड ज़्यादा चाहिए सी, चलो एक कह सकते कि इत्थे एक लैग जरूर रहा। हुण दूजे पासे असीं गल जेकर इस पूरे विषय नूं लैके जिक्र करिए कि इसनूं खत्म किवें कीता जा सकदा है, या फिर हुण की कुछ अगे जिहड़ा प्रोसैस है वो कर सकदी है एयरलाइनस कंपनी, उस ते आवांगे। मैनन साहब, हुण की कुछ जिहड़े मैजरमेंट है वो इंडिगो नूं लैणे पैणगे? चाहे तुसीं जिक्र पहले किया कि पैनल्टी जिहड़ी है रिफंड तो तुसीं देना ही देना है। जे मान लो किसी ने 10,000 की टिकट बुक की, 10,000 तो वापस मोड़ोगे ही, लेकिन नाल पैनल्टी अमाउंट 2,000 3,000 एक्सट्रा सम अमाउंट ऑफ वो पे करना पेगा। एक यह तरीका तो हो सकता है, होर की कुछ हो सकता है? क्योंकि इस दे नाल तो फिर फ्लाइट्स कंपनी को भी घाटा पै जाएगा, क्योंकि फिलहाल जेकर आप वेखिए मैनन साहब 4 दिन हो गए और 2,000 का आंकड़ा आ गया, 2,000 फ्लाइट्स रद्द हो गई और अज ही 1,000 फ्लाइट रद्द हुई है। तो जरूर इत्थे कंपनी को लॉस तो होएगा ही दूजे पासे, पर इस सिचुएशन दे विच बाहर किद्दां निकलना है? क्योंकि जिक्र तुसीं यही किया कि इंडिगो उत्थे भी पहुंच गया जिथे कि भारतीय फ्लाइट्स नहीं पहुंच रही सी, यानी भारतीय फ्लाइट तो है ही है ना, क्योंकि भारतीय फ्लाइट है। तो जे इहदे विच जरूर यह भी जिक्र के सामने आउंदा कि भारत का एविएशन दूर तक पहुंचे,
ਹੁਣ ਇਸ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੈਜਰमेंट ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ मैडम साहब? जी, तो मुझे तो सबसे पहले लगता है कि एडवांस्ड इंफॉर्मेशन दिया जाए, कम्युनिकेशन किया जाए शॉर्ट टर्म में। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि कौन सी फ्लाइट कैंसिल होने वाली है, कौन सी नहीं होने वाली है, ऑपरेशंस को जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा, जिससे टाइम में पैसेंजर्स को पता लग सके। और ऐसा ना हो कि वो घर छोड़ के, उनको बुरा तो सबको लगेगा, लेकिन कम से कम घर छोड़ के एयरपोर्ट पे आके कम से कम सैनिटरी पैड तो नहीं मांगेगा। दैट वोंट हैपन, यू नो, दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल नॉट हैपन। जी। सेकंड थिंग, दे विल हैव टू गेट पायलट्स, दे विल हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लाइट्स। पहले तो मतलब अपनी फ्लाइटें उन्होंने कट करनी पड़ेंगी, उसके बाद में उन्होंने पायलट जितने ज्यादा बढ़ा सकते हैं जल्दी, मतलब एक दूसरी एयरलाइन से थोड़ा बहुत हेल्प मांग के, ये परमिटेड है डीजीसीए में ठीक कि है। किसी और एयरलाइन का पायलट दूसरी एयरलाइन का एयरक्राफ्ट उड़ा सकता है अगर परमिशन दी जाए तो। ठीक है। तो जिन एयरलाइन के पास में पायलट थोड़े ज्यादा हैं अभी, जो उस एयरक्राफ्ट पे रेटेड है, उनको कुछ दिन के लिए, मतलब 15-20 दिन के लिए लोन पे लेकर के कुछ फ्लाइट्स उड़ाई जा सकती हैं। उसके लिए कंपनसेशन ऑफ कोर्स उनको दूसरी एयरलाइन को देना पड़ेगा, ठीक ठीक है। है। और उसके बाद में मतलब इंडिगो ने जैसे अभी 15% अपनी विंटर्स में फ्लाइट बढ़ाई है पिछले विंटर तो, ठीक है, अगर कंपेयर करें तो वो थोड़ी उन्होंने कम करनी पड़ेंगी, कुछ बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये अब जो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है कि हजार फ्लाइट अगर एक दिन में कैंसिल हो रही जी। हैं, तो इसको करते करते भी, सॉल्व करते भी धीरे धीरे टाइम जी। लगेगा। तो इसमें सबसे पहले है कि पैसेंजर्स को कम्युनिकेशन ठीक करो, पायलट्स को जल्दी से कहीं ना कहीं से लोन पे लो, और बाकी पायलट्स को रिक्रूट करो, क्योंकि मेरी नॉलेज में बहुत पायलट्स ग्राउंड पे भी बैठे हुए हैं जो उड़ा सकते हैं, फ्लाइंग में जा सकते हैं, लेकिन उनको 3-4-5 महीने की मिनिमम ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इनको रिक्रूट करो, जिससे कि मान लीजिए मार्च अप्रैल तक, जब ये गर्मी का सीजन आएगा, जो समर वेकेशन आएगी, कम से कम उस टाइम पे जो मैक्सिमम ट्रैफिक बढ़ेगा, तब तक आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो चुकी होगी। जी जी। एक बार मेरी टीम ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਟਿਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਦੱਸ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 6000 ਤੋਂ 8200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6000 ਤੋਂ 8200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 68000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 82000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 47000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 15000 ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 32000 ਰੁਪਏ। ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ मैं ये वाला फंडा भी समझना चाहूँगा, अजिहा क्यों हो गया? अमित जी। तो प्रॉब्लम है टेक्निकल का भी। अभी मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली चेन्नई 1,11,000 1,12,000 भी मांग रही इकोनॉमी, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब डिमांड बढ़ जाती है और जिस रेट से वो बढ़ती है, टिकटिंग सिस्टम आपको अपने आप उस चीज़ को सेंस करता है और टिकट की प्राइसेस बढ़ा देता है। ये कोई बैठा हुआ आदमी नहीं कर रहा होता है, तो ये प्रॉब्लम है। अभी जो मैंने मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन का लेटेस्ट इंटरव्यू टाइम्स नाउ पे देखा था, उन्होंने बोला है कि मैंने एयरलाइन को भी ये बोला है कि कहीं पे भी कोई भी टिकट प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये तो अगर डीजीसीए से लिखित में जाएगा उनके पास जी, सारी एयरलाइंस के पास, तो वो अपने टिकटिंग सिस्टम को थोड़ा सा मतलब कमांड्स देकर के उसको ट्वीक करेंगे कि ये एक स्लैब के ऊपर, मान लीजिए कोई एक स्लैब दे दिया जाए, उस स्लैब के ऊपर ना बढ़ने दें, क्योंकि ये बहुत सरासर गलत है कि भाई आप ही के, बिकॉज हाँ, क्योंकि आप ही के किसी गलती, मतलब हम ये मान रहे हैं, चलो मान रहे हैं कि आपसे गलती हुई, उस गलती की वजह से पहले ही पैसेंजर्स खामियाजा भुगत रहे हैं। अब उसमें आप उनसे अगर 6000 की फ्लाइट का 60,000 मांगेंगे तो वो भी बहुत गलत बात है, क्योंकि कई लोगों को बहुत जरूरी काम से जाना भी होता है। कोई बिजनेस हो गया, कोई शादी हो गई, कुछ हो गया, ये तो शादियों का सीजन भी चल रहा है अभी, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। ये डीजीसीए ने इसमें स्टेप इन करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि उसके बिना इनका जो सिस्टम्स है इतने बड़े हैं कि अगर आज अगर मतलब इंडिगो का चेयरमैन बोलेगा भी कि भाई फ्लाइट के वो कम करो, कम से कम इनको सिस्टम को ही चेंज करने में 3 दिन लग जाएंगे कि वो फ्लाइट के प्राइसेस को कम रखें।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਜੇਕਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ DGCA ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੇ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪੀਲ 'ਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ हैं। जो इंडिगो की फ्लाइट्स में 2-3 दिन से जो तकलीफ हुई आम लोगों को, उसके लिए एक छोटा सा मैसेज है। मेरा खुद का परिवार ट्रैवल कर रहा था और करीबन 4.5-5 घंटे उन्हें वेट करना पड़ा, और फिर फ्लाइट उड़ी, पहुंच भी गए, और बहुत सारी फ्लाइटें नहीं उड़ी, बहुत सारी कैंसिल हुई, बहुत सारे लोग शादियां नहीं अटेंड कर पाए, मीटिंग्स कैंसिल हुई, इवेंट्स कैंसिल हुए, बहुत तकलीफें हुई। लेकिन जो दुख की बात ये देखने को मिली कि उन एयरपोर्ट्स पे जब जितना जो स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ, उस पे कैसे लोग चिल्ला रहे थे। आई नो कि फ्रस्ट्रेशन होती है, दुख होता है, और आप अपना गुस्सा निकालते हो, बट आप खुद को इमेजिन कीजिए उनकी जगह पर, जो खुद बेबस हैं, उन्हें पता नहीं कि आगे क्या स्केड्यूल्स हैं, कैसे फ्लाइट्स उड़ेंगी या नहीं उड़ेंगी, और जो उन्हें ऊपर से मैसेजेस आते हैं, दे जस्ट हैव टू पास इट ऑन टू यू। सो जो लोगों ने रिएक्ट किया, जिस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये वो स्टाफ है सर्विस इंडस्ट्री का जो हम लोग का ध्यान रखता है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ नहीं मैडम साहब। जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है, बिल्कुल ही बैलेंस्ड व्यू है, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बताया था कि इन बेचारों के ऊपर चिल्ला के बोल के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। बिकॉज जो ऑपरेशन स्टाफ है वो होता ही नहीं है वहाँ पे जहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं। ये लोग फ्रंट डेस्क टाइप, फ्रंट फेस हैं, इनको चिल्ला के कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, DGC के एयर सेवा पोर्टल पे आप अपनी कंप्लेंट्स डालिए, जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स होगी, वो भी एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो उतनी ही ज़्यादा पेनल्टी इंडिगो के ऊपर डालेगा। अगर आपने सुना होगा तो हाल ही में करीब 6 महीने पहले, 6 या 5 महीने पहले एयर इंडिया को ऑन टाइम परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से 10 करोड़ की पेनल्टी भरनी पड़ी थी। तो ऐसी पेनल्टी इंडिगो के ऊपर भी आएगी अगर हम सब सारे मिलकर के इन बेचारों के ऊपर चिल्लाना छोड़ करके एयर सेवा पोर्टल के ऊपर या वेब ऐप है उसका ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट डालें विद प्रॉपर फ्लाइट नंबर और ये सारी चीज़ें। जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स होंगी उतना ज़्यादा इंडिगो को वो भी देना पड़ेगा कंपनसेशन, इवन टू दी अथॉरिटीज़। और दूसरी एक चीज़ मुझे लगता है कि इसमें इंडिगो ने एक और चीज़ करनी चाहिए थी कि जो ग्राउंड पे अवेलेबिलिटी ऑफ स्नैक्स, वाटर, ये थोड़ा इन्होंने थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि लोगों को एंटिसिपेटेड नहीं था कितनी डिले होगी। कोई 1 घंटा समझ के आता है और वो 12 घंटे एयरपोर्ट पे रह जाता है। जैसे मेरी वाइफ एक्चुअली चेन्नई की रहने वाली है, तो हमारा चंडीगढ़ चेन्नई फ्लाइट से काफ़ी वास्ता है जो सुबह 7:20 पे निकलती है। मैंने आज ही पेपर में पढ़ा कि वो 7:20 की जगह शाम को 5:50 पे निकली और शायद अगले दिन कैंसिल भी होने वाली है। तो मतलब कोई अगर पहुंच जाएगा सुबह सुबह 7:20 की फ्लाइट पे करीब 5:30 बजे, तो 5:30 से 5 बजे तक शाम को अगर बैठना है, स्नैक्स, फूड, वाटर शुड बी मेड अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू देम। बिल्कुल ठीक है, फिर वो पैसेंजर्स का भी गुस्सा है इन बेचारों के ऊपर थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं मैडम साहब, तुसी गल बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि जो जे हालात है कंपनसेशन सहयोग ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ DGCA ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਮਿੱਥਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ DGCA ਦੇ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।